Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the Bar Council of India All India Bar Examination 13th. You can see the question paper comes like this. It was held on 23rd December 2018. These are the instructions: 100 marks, 1 mark each, 3 hours time. And there is no negative marking in this paper. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज restrictions may not be imposed on freedom provided under article 19(1)(a) on this ground. कौन से ग्राउंड पर नहीं है? On the ground of sedition. C is the answer. बाकी इनके बेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज 2 राइट गारंटीड टू सिटीजंस ओनली इज कौन से हैं? 19(1)(a). C is the answer. Next is 3 president can be removed on the ground of for the violation of the constitution. C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 61 जहां पर मैंने लिखा हुआ है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज 4 द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विथ सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5 राइट टू प्री ऑडियंस इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 23 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 6 The contempt of court belongs to. तो ये दिया गया है एंट्री 77 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 14 ऑफ कंकरेंट लिस्ट. देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत कर दिया. ये स्टेट लिस्ट में नहीं है. स्टेट लिस्ट 14 तो एग्रीकल्चर के लिए है. ये एंट्री 14 इन कंकरेंट लिस्ट है और 77 इन यूनियन लिस्ट है. तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया गलत. नेक्स्ट इज 7 हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन कंसेप्ट ऑफ PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम. Was P.N. Bhagwati. D is the answer. Next is 8. The Supreme Court of India issued a number of direction for the prevention of women in various forms of prostitution and to rehabilitate their children through various welfare measures and so as to provide them with dignity of person, means of livelihood and socio-economic development in the case of. कौन सा केस था ये? था गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 9 हदीस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. इट कंप्राइजेज वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द प्रॉफिट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट. सी इज द आंसर. बट अब इस बोर्ड को जो है रिपील कर दिया गया है बाय द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम 4/4/2021. अर्लियर इट वाज इन चैप्टर 11 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट. बट अब वो यहाँ पर नहीं रहा है. इसकी पावर किसको दे दी गई है? सारी हाई कोर्ट को. नेक्स्ट 11 दैट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन विद इन विच अ फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड. Within 6 months. A is the answer. Next is 12. Which one of the following section deals with the forms of summons? 61. B is the answer. Next 13. Under CRPC, provisions relating to prosecution of judges is provided under section 197. B is the answer.
Next is 14. A resides at Hyderabad, B at Calcutta, and C at Delhi. A, B, C being together at Allahabad, B and C makes a joint promissory note payable on demand and delivered to A. A may sue B and C at Allahabad where the cause of action arises, Calcutta where B resides, या फिर Delhi where C resides, या फिर all of the above. All of the above, D is the answer. And this is illustration B in section 20 CPC. Next is 15. Section 25 empowers the Supreme Court to transfer any suit, appeal, or proceedings from one High Court to another High Court, या फिर one civil court to another civil court in any other state. तो C इसका आंसर रहेगा, both A and B. सेक्शन बता ही दिया यहाँ पे. Next 16. In which of the following cases can C set off claim? तो क्या है देखिए, A sues C on a bill of exchange 500. C alleges that A has wrongfully neglected to ensure C's good and he is liable to pay. या फिर A sues C on a bill of exchange of rupees 500. C holds a decree against A for recovery of debt of rupees 1000. तो यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा. A sues B and C for rupees 1000 that is due to C alone by A. यहाँ पर ये नहीं होगा. फिर A sues B and C for rupees 1000 that is due to C by alone. तो B इसका आंसर रहेगा. B में सेट ऑफ हो सकता है यहाँ पर. जो ऑप्शन ए है ये है इलस्ट्रेशन C, B वाला है इलस्ट्रेशन D, और ये फिर है F एंड G इन ऑर्डर 8 रूल 6. सेट ऑफ जहाँ पर लिखा हुआ है. Next 17. The Latin word res ipsa loquitur means thing speaks its story itself. A is the answer. Next is 18. In which of the following cases principle of common employment was evolved for the first time? ये था Priestley versus Fowler. B is the answer. Dhillon versus Fletcher किस पर था? ये strict liability पर. Next is 19. Disciplinary Committee of Bar Council is conferred the power of civil court under CPC. Under section 42 of Advocates Act. B is the answer. Next is 20. Which one of the following is the leading case on injurious in damnum? With Ashby versus White. B is the answer. Next 21. Which one is the leading case on strict liability? अब देखिए बताया था ऊपर ना, Rayland versus Fletcher. B is the answer. Next 22. Section 66A was invalidated by Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India. B is the answer. Next 23. Environmental impact assessment is a statutory under Environment Protection Act. D is the answer. देखिए दोनों रिपीट क्वेश्चन है, मैं कर चुके हैं पहले पेपरों में. Next 24. When two or more person by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit affray. B is the answer. प्रोविजन का इसका 159. दंगा रॉयट कहाँ पर? 146. असॉल्ट 351. Next 25. Promotion of class hatred is given in section 153A IPC. A is the answer. Next 26. The distinction between 299 and 300 was made by Justice Melville in case of R versus Govinda. B is the answer. Next 27. Which of the following is not a federal feature of any constitution? Written constitution होता है double set of government, constitutional and single citizenship का यहाँ पर नहीं होता, तो D इसका आंसर हो गया. ड्यूअल सिटीजनशिप का होता है ना, एक स्टेट की होगी, एक वो पूरे कंट्री की होगी. Next 28. Parliament exercise of its power to amend under Article 368 may not amend. प्रियम्बल कर सकते हैं, amend fundamental rights कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, बेसिक स्टेटमेंट नहीं कर सकते. D इसका आंसर रहेगा. Next 29. Which article starts with subject to public order, morality and health? ये आर्टिकल 25. D इसका आंसर रहेगा. Next 30. Section 19 of Hindu Devotion Maintenance Act provides for the maintenance of widowed daughter-in-law. C is the answer. Next 31. Section 30 of Hindu Succession Act deals with
Testamentary succession, B is the answer. Next 32. Which one of the following sections of CRPC deals with examination of person accused of rape by medical practitioner? Section 53A, C is the answer. Next 33. According to section 167 CRPC, an accused person can be remanded to police custody for not more than 15 days, और वो भी first 15 days. C is the answer. Next 34. Which of the following is essential for valid adoption under the Hindu Marriage Act? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया. कैसे? देखिए ये एसेंशियल पूछ रहे हैं किसके? वैलिड अडॉप्शन के. और कहाँ पर? हिंदू मैरिज एक्ट में, जबकि आना चाहिए था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जहाँ पर दत्ता होम जरूरी नहीं होता, ओनली एक्चुअल गिविंग टेकिंग ऑफ चाइल्ड होता है. तो अगर यहाँ पर लिखा होता हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट तो भी ठीक होता. नेक्स्ट 35. Hindu male can adopt a female child if difference of age between two is of more than 21 years. D is the answer. ये अदर कंडीशन सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. Next 36. Which of the following relations is not dependent under section 21 of Hindu Adoption Maintenance Act? ग्रैंड का नहीं है, ऑब्वियसली मदर, विडो एंड डॉटर का है, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 37. ए कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 क्या है? रिमेन्स प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. बिल्कुल ठीक है ये. डज नॉट रिमेन, डज नॉट रिमेन, डज नॉट. ए इसका आंसर रहेगा. Next 38. Which section of Indian Evidence Act provides that an accomplice is a competent witness? That is section 133. C is the answer. Next 139. Which is the subject matter of neighboring right protection? That is for performance. A is the answer. देखिए ये रिलेट करता है कॉपीराइट से. ओके. और 3 टाइप के होते हैं: परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग. Next is 40. Adam Smith has enumerated canons of taxation which are accepted universally. तो कौन कौन से हैं वो? वो है इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी. डी इज द आंसर. Next 41. For the first time in India, income tax law was introduced by Sir James Wilson in the year 1860 में इंट्रोड्यूस किया था. एक्ट आया था 1886 में. तो सी इसका आंसर है. ये अभी रिपीट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. Next is 42. Which one of the following section of CRPC deals with compoundable offences? That is section 320. B is the answer. Next 43. What is the time limit under section 468 CRPC for taking cognizance? अब देखिए अगर फाइन ओनली सेंटेंस है तो 6 मंथ्स की है. अगर अप टू 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है तो 1 ईयर है. और फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर है तो 3 ईयर है. और 3 ईयर अबव है तो नो लिमिट. अब देखिए यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ टाइम लिमिट अंडर सेक्शन, मतलब सेंटेंस कौन सा है वो तो लिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन ये हो गया गलत. नेक्स्ट 44. इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मींस फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, एन इंडस्ट्री. देखिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 2KA ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में. और फैक्ट्री आ जाएगा, माइन आ जाएगा, और इंडस्ट्री तो है ही है. तो यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 4 आना चाहिए. वृक्षारोपण नहीं होता है, तो 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है. ये भी जो है गलत कर दिया. नेक्स्ट 45. स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ओनली व्हेन एटलीस्ट -% ऑफ वर्कर्स आर इन सपोर्ट ऑफ स्ट्राइक. कितने परसेंट? 15%. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 46. इंडस्ट्रियल रिलेशंस cover the following area: collective bargain, labor legislation, industrial relation training, ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन एक्ट है तो 1, 2, 3 हो गया इसका आंसर. तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दिया लग रहा है मेरे को. यहाँ पर 1, 2, 2 कर दिया, 1, 2, 1, 1, 2 कर रखा है. तो ये थिंक टाइपिंग मिस्टेक्स कर रखी हैं इस पेपर में काफ़ी सारी. 1, 2, 3 होना चाहिए. नेक्स्ट 47. द टर्म सूट ऑफ अ सिविल नेचर रेफर्स टू private right and obligation of a citizen, political, social, religious question, a suit in which principal question relates to caste or religion, all of the above. सारे ही आगे इसमें डी इसका आंसर रहेगा. सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में कहाँ पर बात की गई? सेक्शन 9 CPC में.
Next is 48. Rule of res sub judice implies with the same subject matter is pending in a court of law for adjudication between the same parties, the other court is barred to entertain the case so long as the first suit goes on. बिल्कुल ठीक है, provided in section 10 है ना CPC, और इस court is barred to entertain the case so long as first suit go on. देखा ना, सेम सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग बिटवीन डिफरेंट पार्टीज तो नहीं होगा, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर तो नहीं होगा, तो आंसर क्या रहा इसमें? ए इज द आंसर. Next 49. A suit brought by a person to recover possession from a stranger of much property claiming it as an heir of the deceased Mahant. Suit is dismissed on the failure to produce a succession certificate. A second suit was filed by him as a manager of the mutt. देखिए यहाँ ऑप्शन ही गायब कर दिए हैं. Next is 50. Which among the following is not an ADR under section 89 of CPC? मिनी ट्रायल ये नहीं है, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत ये है, कंसिलेशन है, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 51. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स अलाउड इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स? तो इसमें से कोई भी नहीं है ये, तो इसमें नन ऑफ द अबव इसमें आंसर रहेगा, डी इसका आंसर है. नेक्स्ट 52. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ए सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स? तो क्या नॉन बाइंडिंग रहता है, सेम सेटलमेंट अवार्ड होता है आकार के रूप में, अनलाइक सेटलमेंट अवार्ड, तो ये सेम एज सेटलमेंट अवार्ड रहता है, बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 53. अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट आना चाहिए. देखिए लिखा हो ना साक्ष्य अधिनियम, इधर यहाँ पे भी साक्ष्य की स्पेलिंग गलत कर रखी है, नहीं क्या बनाते हैं पेपर यार. A person is a competent witness if he or she is a major, not lunatic, and is not of extreme old age, is capable of understanding questions put to him and giving rational answer irrespective of age. मेजर की तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो डी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन दिल्ली बता ही दिया, 118 में है ये. नेक्स्ट 54. विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 55. अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ए विटनेस हैज बीन गिवन राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी? दैट इज सेक्शन 159. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 56. मैंडेमस में बी इशूड बाय, क्या कर रखा है ये, आई थिंक ये किसी ने ना ये कहीं से पेपर लेके ना और उसको ट्रांसलेट करके डाल दिया है इधर. सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी, डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 57. द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज एडेड बाय, ये आया था 42nd अमेंडमेंट से, ए इज द आंसर. और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 323A एंड बी. एक अलग से पार्ट ही जो है ऐड किया गया था, पार्ट 14A, किसके लिए? ट्राइब्यूनल्स के लिए. नेक्स्ट 58. द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर 304 CRPC. अब देखिए प्रोविजन के बता रही है, लेकिन एक्ट कौन सा? बी इसका आंसर रहेगा. एक्ट तो लिखो. Next 59. Which one of the following provision of CRPC? Police officer is under an obligation to produce the person arrested before magistrate within 24 hours. That is section 57. B is the answer. Next is 60. Who may record confessional statement under section 164 CRPC? Judicial officer, obviously judicial magistrate. अब देखिए यहाँ आना चाहिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है ना, चाहे उसके बाद जुडिक्शन हो या ना हो. तो मैं कहूँगी ये ऑप्शन सारे गलत हो गए. यहाँ लिखा हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन ओनली, कोई ज़रूरी नहीं है 164 के केस में. जुडिशियल ऑफिसर लिख दिया इधर, ये हो सकता है एक तरीके से, बट मैजिस्ट्रेट लिखना ज़रूरी था यहाँ पे. नेक्स्ट 61. द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग ऑफेंस. सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में नहीं होता, हेजिटेट खिलाफ. क्या लिखते हैं ये? बोथ ए एंड बी, सी इज द आंसर.
प्रोविजन कहाँ है प्ली बार्गेनिंग के? चैप्टर 21A है, जो कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 विद इफेक्ट फ्रॉम 2006 से आया था। और सेक्शन कौन कौन से हैं? 265A से 265L तक। Next 62, when two or more person agree to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy. C is the answer. सेक्शन कौन सा ये? 120A IPC में मेंशन किया गया है। इसकी पनिशमेंट कहाँ है? 120B में। Next 63, the provision regarding sedition are given. Section 124A IPC, obviously B is the answer. तो बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। Next 64, a suit may be dismissed under order 9 where someone is not served upon the defendant in consequence of plaintiff's failure to pay service of cost for service of summons. ये बिल्कुल ठीक है। वे नीदर द प्लेंटिफ नॉट द डिफेंडेंट अपीयर्स, बिल्कुल ठीक है। वेयर आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल फॉर अप्लाई टू फ्रेश समन्स विद इन 7 days, ऐसा आना चाहिए। ये भी है, बिल्कुल ठीक है। फिर वेयर ऑन द डेट फिक्स ऑफ हियरिंग इन अ सूट ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स एंड ही डज नॉट एडमिट द प्लेंटिफ्स क्लेम, तब भी जो है डिसमिस हो जाएगा सूट। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, डी इज द आंसर। ऑर्डर 9 बता ही दिया है, यहाँ पर प्रोविजन है इसमें। Next is 65. The ex-officio chairman of the Council of State is Vice President, obviously. C is the answer. सबको पता है ये तो। Next 66. Right to property in India is a fundamental right, a constitutional right. It is a constitutional right provided under Article 300A. Earlier it was a fundamental right in 1901F, but it was deleted by the 44th Amendment and added as a 300A. Now it is only a constitutional right. तो B इसका आंसर रहेगा। Next 67, which of the following writs mean to produce the body of a person? Yeah, habeas corpus, D is the answer. Next 68, delegated legislation was declared constitutional in which case? In Reed Alley Laws Act case, B is the answer. पहला केस था ना delegated legislation पर, ये भी पूछते हैं कई बारी। Next 69, a prospectus which does not include complete particulars of a quantum of price of the securities included therein is known as red herring prospectus. C is the answer. ये company law से related है। Next is 70, when there is no profit in 1 year and or the profit of a company is not enough to pay fixed dividend on preference share, the arrears of dividend are to be carried forward and paid before dividend is paid on ordinary share. This is called, क्या बोलते हैं इसको? Cumulative preference shares. B is the answer. Next 71, industrial dispute means any dispute or difference between. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। तो क्या लिखा हुआ है? डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यस। एम्प्लॉयर वर्कमैन, यस। वर्कमैन वर्कमैन, यस। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर रहेगा। देखिए ऑप्शन जो है ये 1, 2 और ये 3 आना चाहिए। देखिए वहाँ पे 1, 2, 3 लिख दिया है, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट 72, whom the following cannot transfer an immovable property? हिंदू विडो कर सकती है, मुस्लिम विडो नहीं कर सकती। नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर कर सकते हैं, कर्ता मैनेजर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली कर सकते हैं। तो बी इसका आंसर रहेगा। मुस्लिम विडो के पास राइट्स नहीं होते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के। नेक्स्ट 73, द डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस वाज एक्सप्लेन्ड इन द लीडिंग केस ऑफ बेलम वर्सेस बाइन। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 74, X strikes A. A is by the provocation excited to violent rage. Y, a bystander intending to take advantage of A's rage to cause him kill X, gives a revolver into A's hand for that purpose. A kills X with the revolver. तो क्या होगा? A is liable for committing murder and Y is liable for abetting murder. A is liable for committing culpable homicide and Y is not liable. No, wrong है। committing culpable, abetting culpable, no। A इसका आंसर रहेगा।
देखिए इसमें तो क्या होता है ना कि जो ए इज लेबल फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड होगा एंड वाई इज लेबल फॉर अबेटिंग मर्डर। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है गलत कर दिया ये सारा का सारा। Next 75, right to free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution in the case of, तो ये केस था हुस्नैरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 76, इन विच कंट्री वाज कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड। ये USA में ओरिजिनेट हुआ था। बी इसका आंसर रहेगा। Next 77, a question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called leading question. B is the answer. Section 141 Evidence Act provides for that. Next 78, option of puberty is a ground of divorce under Hindu Marriage Act. किसको मिलता है? Only wife को। B is the answer. और provision कहाँ है इसका? यह है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में in Hindu Marriage Act. Next 79, which section of Hindu Marriage Act provides that a child from void marriage would be legitimate? Yeah, section 16. D is the answer. Next is 80, which of the following appears to contribute global cooling rather than global warming? Yeah, nitrous oxide. A is the answer. Next 81, A and B agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of fencing may be caused without foul play. If A while playing fairly hurts B, A commits no offense. The provision are given under which section? 87 of IPC. A is the answer. ये वहाँ and this is illustration there. वहाँ पर illustration है ये। Next 82, the provision of right of private defense are given under section 96 to 106. C is the answer. Next 83, the parties which cannot be compelled to perform specific performance of contract are provided in which section of Specific Relief Act? देखिए ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि कौन कौन नहीं कर सकता। ये तो दिया हुआ है कौन कौन करवा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। 27, 28, 29 ये तो डिसीजन से रिलेटेड हैं ये। 29 ऑल्टरनेटिव प्रेयर है और 30 है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज टू डू इक्विटी। नेक्स्ट 84, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल? पेंशन के ट्रांसफर हो सकती है। नो। पब्लिक ऑफिस नो। राइट टू रेंट्री नो। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। डी इज द आंसर। इनके बारे में कहाँ लिखा हुआ सेक्शन 6 में कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकती इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। Next 85, which of the following does not come under the immovable property as per TP Act? Sale of ceiling fan तो movable property होगी ना। Claim maintenance, right relating to release ये immovable property, inventory right ये है। Right to claim maintenance from property अगर लिखा होता तब तो इसमें आता, बट ये थोड़ा confusing कर दिया। ये तो है ही नहीं, तो मतलब A तो आंसर है ही है, B could be the, but B यहाँ पर लिखा हुआ ना to claim maintenance, तो ये immovable property में कैसे आया? Next 86, State of UP versus Nawab Hussain is case related to constructive res judicata. C is the answer. Res judicata provision का है section 11 CPC and constructive res judicata in explanation 4. Next 87, X is living in Pune, Y his brother in Mumbai. X want to file suit to partition of their joint property situated in Delhi and Bangalore. तो कहाँ केस कर सकते हैं? In Delhi और in Bangalore. तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 88, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई सिचुएटेड इन एट भोपाल एंड रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन इन एट इंदौर। सूट टू ऑब्टेन कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी मे बी इंस्टीट्यूटेड कहाँ पर? आइदर भोपाल और इंदौर। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 89, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम? दैट इज 66, 60, अभी 60 होना चाहिए था यहाँ पर, 60 से 65 तक है ये। बी इसका आंसर रहेगा। वो हिंदी इंग्लिश कर दिया ना, हिंदी इंग्लिश के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने फिर से वही कर दिया। देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी, कितनी मिस्टेक्स कर रखी हैं यहाँ पेपर में इसमें। नेक्स्ट 90, ए पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April of every year is known असेसमेंट ईयर।
A is the answer. Next 91. Which section of IT Act deals with validity of contract formed through electronic means? That is section 10A. B is the answer. Next 92. Joint sitting of both houses of parliament may be called by the president. C is the answer. And this is provided in article 108 of constitution. Next 93. Specific relief dash where the agreement is made with minor. Can get, cannot be get. Obviously cannot be given. तो B इसका आंसर रहेगा. Next 94. A person entitled to the possession or specific immovable property of आना चाहिए may rest in manner provided under CPC procedure. कहाँ लिखा हुआ है CPC में? A इसका आंसर रहेगा. Next 95. Section 39 of Specific Relief Act deals with, ये मैंडेटरी इंजंक्शन से रिलेटेड है. रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं कहीं पर भी. कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने में है? ये 31 में है. करेक्टनेस के बारे में नहीं बात की तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 96. ए डम विटनेस गिव्स हिज एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट. सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज एन ओरल एविडेंस. कहाँ मेंशन किया गया? 119 एविडेंस एक्ट में. नेक्स्ट 97. अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट. पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस ये है, जजेस है, मैजिस्ट्रेट है, आर्बिट्रेटर नहीं होता. तो डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 98. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डिफाइंस टर्म ओनर. देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर पहुँचा रही है इसका. ये सेक्शन 230 ही है. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 99. लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 अभी रिपील कर दिया गया है बाय द फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट से, है ना. तो इसका ये क्वेश्चन हो गया इररेलेवेंट. नेक्स्ट इज 100. अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894. देखिए जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है इसको रिपील कर दिया गया है बाय द फेयर कॉम्पनसेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014. बट फिर भी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन आए तो ऑब्जेक्ट कीजिए, बिल्कुल इसको डिलीट किया जाएगा. जब रिपील हो चुका है कोई लॉ से तो क्वेश्चन पूछना ही रेलेवेंट है. So friends, here we discuss all the questions of BCI All India Bar Examination AIBE 13th. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.